नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं और आप जानते हैं मैं कुछ न कुछ आपको आइडियाज़ देने की कोशिश करता हूं which helps you in running the bank, understanding the complexities of the issue. Of course, this is for the urban cooperative banking sector only. I don't talk to the bigger urban cooperative banks, but the smaller ones and the mid-sized ones. So roughly मेरा ये अंदाज़ा है कि 1100-1200 जो छोटी बैंक हैं, मिड साइज़ बैंक्स हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आइडिया ये है कि वो जो भी करना चाहेंगे वो सोच समझ के करें। मेरा कतई दावा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। यू हैव टू टेक अ क्लू एंड डिसाइड व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर बैंक। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है और ये आईटी के लोगों के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर अ बैंकर who has to use technology. This is for the banker who has to understand how CBS has to deliver for the basic objective of his or her bank. So IT वाले जो लोग हैं वो मेरी इस प्रेजेंटेशन में कई खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो जेनेटिकली एक्सपीरियंस मुझे जो आ चुका है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजर्स एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द बैंक. Technology is not for the technology people, technology is for the consumers, technology is for the users to deliver the products and also be regulatory compliant. Over a period of time, you know that Reserve Bank of India has changed a lot of dynamics in technology, and therefore somewhere in the month of October or I believe November, I had made a video on CBS for MIS. That my CBS is not generating the MIS which is required for the purpose of regulation, and regulators are seeking a lot of input from you and they want this input from your CBS system. हालांकि वो बात अलग है कि कई बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रेगुलेटर डिमांड करते हैं वो सभी CBS से नहीं निकलती हैं, because there are several subjective inputs which the Reserve Bank of India wants while conducting the inspection and while controlling your bank. On an off-site basis also they try to seek input from you. You all know that the BR Act has changed a lot of dynamics of regulation and things are changing for the better. Now, Reserve Bank of India wanted all urban cooperative banks to implement effectively the core banking solution. That was way back in 2013. And there is a presumption that there used to be one condition in various guidelines which the Reserve Bank used to issue. One of the condition was the bank should have the core banking solution. Core banking solution, why Reserve Bank of India was insisting? Simply because they wanted to have a better control, access to your input, and these days post 2017-18 they are seeking data dump from you. अगर CBS नहीं है तो आप data dump दे ही नहीं सकते हो. Over a period of time, Reserve Bank of India has also now realized that almost all the cooperative banks are having core banking solution, and this core banking solution enables you to do the compliance as is required by the Reserve Bank of India. Mind you, many urban cooperative banks did CBS without paying attention as to what the CBS should deliver for them. They continue to use CBS as a transaction platform. Any branch banking or whatever, all those basic typical facilities are there. Apart from that, over a period of time, the ecosystem, the payment ecosystem has undergone substantial change. And many urban cooperative banks find it difficult that their existing software, which was purchased for the compliance, is not helping them now. They are finding it difficult. The existing small time vendor who had supplied the core banking solution to them was looked upon as a transaction platform. Things have changed. It is much beyond the transaction platform. CBS should deliver substantially if at all you want to ensure that your bank remains floating and growing. अगर आप CBS का इस्तेमाल सही ढंग से कंप्लायंस के लिए और प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए नहीं करते हो
तो आपका जो एग्जिस्टिंग CBS सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो चुका है, या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस जिस तरह से चेंज हो रहे हैं वो अगर आपका CBS वेंडर नहीं कर पा रहा है, द टाइम इज कम फॉर यू टू लुक फॉर द चेंज इन योर CBS प्लेटफॉर्म, इन योर CBS सॉफ्टवेयर। हर बैंक को शायद परोड़ेगा नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज देयर इज नो MRP फॉर CBS, and I don't want to talk about any particular software vendor or any particular software company in this video, because I am not here to propagate the cause of any of these software vendors. I just would like to enlighten you if the things have become difficult. As promised in my October-November video, that I will be telling you or informing you as to how the core banking solution has to be selected. The first and foremost thing which comes to my mind is that any CBS software, any CBS provider must comply with the basic thing. And what is that basic thing? It should be compliant, or it should implement the regulatory changes that are there, that are likely to come. Many CBS vendors were crying from the rooftop that during COVID, when they had to implement a system-based program for the interest subvention which was introduced by the central government and the Reserve Bank of India, they were finding it difficult to manage the NPA show, manage the online NPA show. And online NPA, Reserve Bank of India is now insisting that you must get a certificate from your statutory auditor that your NPA identification and provisioning, including the SMA classification, is done online. If it is not happening, hitherto the Reserve Bank of India has not taken any action against the bank. But then, let this March 23 go, they will be start taking action wherever the banks are not giving the regulator the information or database wherein the NPA identification, NPA provisioning, SMA identification, SMA 0, 1 and 2 is not being done through system. But let me tell you, whatever be the software company, whatever be the name, जितनी भी नामचीन कंपनी है सबको पकड़ लो आप, हर एक का NPA आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम 99.9% एक्यूरेट है। इसका मतलब है देयर आर एरर्स। कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप ले लो सर, यू टेक एनी सॉफ्टवेयर, आई डोंट वांट टू नेम एनी सॉफ्टवेयर, यू विल हैव प्रॉब्लम्स। Why the problems would be there? Because of the terms of the loans which the banks are granting. For example, if you grant a borrower a ballooning repayment, no CBS software can capture it. No CBS can capture it. So there would be some element where human intervention is involved. What you need to do is this. If at all there is a human intervention in your NPA identification classification, create a record why the human intervention was there. Build a record. This I had mentioned in one of my previous video as well. What is significant is that Reserve Bank of India wants post PMC कि आप अपने सिस्टम में कुछ लफड़ा तो नहीं कर रहे हो. They want an assurance from you, and that assurance is possible provided your software, whatever the CBS software is, whatever the company name is giving you results. And if it is not giving you, the time is high to change it. Now when you want to change a software, I was talking as to what are the key things you need to consider as a banker, not as a technologist. Technologist तो वो आपको RFP से लेके जाएगा, request for proposal से लेके आगे लेके जाएगा, टेंडर के साथ आगे लेके जाएगा. बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है. As a banker, what is important for you to understand, that I am going to share with you. And therefore, if at all you are looking to, or trying to look to a new software, the first thing in a new software you need to identify is this functionality. Whether the software vendor is giving you the functionality which is suitable to your bank. अब इसको टेस्ट किस तरह से करेंगे? कोई भी वेंडर आपको जब माल बेचने आता है तो वो यही कहता है हमारे पास सब है, हमारे पास सब है, वी कैन गिव यू एनीथिंग. वो डेमो भी आपको सब बता देगा, लेकिन चेंज होने के बाद में देयर कुड बी बिकरिंग. सो सीक एन एश्योरेंस
seek an assurance on functionality, that the functionality that is being offered to you will be intact when it is actually implemented. That is one part. And there is one technical terminology that is being normally used, is that the componentization. Componentization is typically a terminology which is used in CBS, is that the जो सॉफ्टवेयर कोडेड सॉफ्टवेयर जो होता है वो पूरा कोडिंग जो होता है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग अगर कर सकते हैं, स्प्लिट अगर कर सकते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि आपको अगर प्रोडक्ट इम्प्रोवाइज करना है तो आप आसानी से कर सकते हो. सो दैट इज कॉम्पोनेंटाइजेशन वेयर यू नीड टू सीक एन एश्योरेंस. एंड देन देयर इज वन मोर टेक्निकल टर्म दैट इज नॉर्मली बीइंग यूज्ड, इज दैट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. So microservices architecture is again it will be a key thing for your selection of software, and how at the back end your software, this particular new software will perform, will be decided by this particular thing. And the third and the most significant part of a software selection is the technical support. Your software vendor should not be a fly by night operator. आज दे देगा, आपको प्राइस कन्विंस करके देगा, कल भाग जाएगा, सपोर्ट नहीं देगा, तुम तो फंस गए. Any software migration requires a time zone, time period. So I'm going to come to that as to what are the steps you need to really consider and decide. One is pricing. If you go for a big daddy software, pricing परवड़ेगा ही नहीं. छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को परवड़ेगा ही नहीं. क्या परवड़ेगा? SaaS परवड़ेगा. SaaS यानी SaaS, Software as a Service. Software as a service will be a rental model. You will have to pay rent to the software vendor, and then you save the cost on data center and DR site. You will have to save the cost. You already have CBS software. If you are already on SaaS, matter is different. But if you are not SaaS and you have an ownership model, you want improved version where under all e-payment gateway channels are being given, including internet banking and mobile banking. You are a banker. It's not your job to deal in technology. Technology is only a mediator. तो गया वो ज़माना जब बैंक सोचती थी कि सॉफ्टवेयर मेरा खुद का होगा, मैं मालिकाना हक एस्टैब्लिश करूंगा और मैं छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स को दूंगा. रिजर्व बैंक परमिशन नहीं दे रही है, पोस्ट बीआर एक्ट वो पॉसिबल ही नहीं है. सो अगर आपके दिमाग में है, आप तो एक तो वो लेवल 4 में चले जाओगे साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स के, और सिक्योरिटी पे बहुत सारा पैसा खर्चा करोगे. अगर आप इफ़ यू स्टार्ट शेयरिंग द टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एज अ बैंकर, दैट इज नॉट योर डोमेन. डोंट डू दैट. Try to move away from that for the simple reason, you have to run the bank. You don't have to run the technology show. You don't have to run the technology company. Understand this. क्या चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करो. वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद में Fortunately or unfortunately, the technology does not have MRP. अगर टेक्नोलॉजी MRP नहीं अगर होती है, उसमें कोई MRP अगर नहीं है, तो चीपेस्ट सॉफ्टवेयर है और कॉस्टलीस्ट सॉफ्टवेयर है. सिलेक्ट कैसे करें? You have to do a lot of analytical things, and while doing that analytical things, analyzing a software, you have to take a principled decision that yes, we need to change the software. We need to ensure that all the regulatory requirements are roped in. We need to ensure that all payment gateway channels are available for our customers. That is the story. Capital investment के लिए capital अगर नहीं है तो रेंटल पे जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्लाउड पे जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्लाउड के लिए हमारे एक जहन में एक डर है कि क्लाउड का मतलब हवा में रखेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. क्लाउड should be in India and you can use the services which are being offered by number of companies. I am not going to take a name of any of a single company. Idea is save the synergies for delivering the products and services. Focus on banking, not on technology. Technology essential है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती. लेकिन अगर essential है तो मुझे क्या चाहिए, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है. इसका जवाब निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और इसलिए जब आप सोचते हो कि you want to change the software, there are a couple of steps which are extremely crucial and critical. The first thing you need to undertake is form a high power committee within your bank which will be decision making body.
मे बी 2 डायरेक्टर्स होंगे, 2 टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव होंगे और 2 टेक्नोलॉजी के लोग होंगे। क्या करेंगे ये लोग डिसीजन लेंगे। बोर्ड शुड ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर कमिटी, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर चेंज करने का प्रोग्राम है वो अब अगर आप 6 महीने साल भर के अंदर नहीं करते हो तो ये 10 साल का प्रोग्राम हो जाता है। मैंने ऐसे कई बैंक देखे हैं कि वहां पे 2-2, 3-3 साल न्यू सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन चलता है। मैंने ऐसे कई बैंक देखे हैं कि 6 साल अपग्रेडेड वर्जन इंप्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर विंडोज ले रहे हैं। आपको नहीं लगता ये उनके काबिलियत पे सवाल है? अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी 5 साल 6 साल इंप्लीमेंटेशन को अगर लेती है, वी शुड क्वेश्चन द कैपेबिलिटीज, वी शुड क्वेश्चन देयर कैपेबिलिटीज ऑफ इंप्लीमेंटिंग एन अपग्रेडेड वर्जन। बट ये अगर करना है, अगर आप ये सोचते हैं तो सबसे बढ़िया चीज आपको पहले क्या करनी चाहिए, आपने सीबीएस कर लिया 2012-13 में, जब हमें कुछ समझना नहीं था किस तरह से करना है। वी वर नॉट अवेयर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वी डिड दैट। जो टीबीए का जो डेटा था वो सीबीएस में डाल दिया, नेटवर्क में आ गया, कनेक्टिविटी ला दी, बैंक चालू कर दिया। आगे क्या करना है? वी डिडंट डू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सीबीएस आने के बाद में हम जिस तरह से बैंकिंग कर रहे थे, वो जो मेथड है वो अगर हम चेंज नहीं करते तो सीबीएस का एडवांटेज आपको कभी नहीं मिलेगा। सो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कंटिन्यू टू बी अ की। मेनी बैंक्स हैव स्टिल नॉट डन दैट। तो उनके लिए जो टोटल ब्रांच ऑटोमेशन का कंसेप्ट था वही सीबीएस में भी चल रहा है। यू आर अंडर यूटिलाइजिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। यू नीड टू चेंज द वे यू आर डूइंग बैंकिंग बिजनेस। और अगर आप इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आपको अगर लगता है कि यू नीड टू चेंज द सॉफ्टवेयर बिकॉज योर करंट सॉफ्टवेयर वेंडर इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग, आपने प्रोसेस कर ली, सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर दिया, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि सिस्टम जानता नहीं है सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर जानता नहीं है उसमें क्या है। देयर इज अ पॉपुलर प्रॉवर्ब कि अगर सिस्टम में कचरा भरा पड़ा है तो अब नए सॉफ्टवेयर में माइग्रेट हो जाओगे तो वहां पे भी कचरा लेके जाओगे। टेक्निकली एक टर्म यूज की जाती है हमेशा, उसको कहते हैं डेटा क्लींजिंग। अगर आप डेटा क्लींजिंग नहीं करते हो और नए सॉफ्टवेयर में माइग्रेट करते हो तो लीगेसी इश्यूज आप नए सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हो, वहां पे मर जाओगे। मर इसलिए जाओगे कि रिजर्व बैंक आपको 100 तरह के रिटर्न्स मांगती है, 179 रिटर्न्स एवरी इंस्पेक्शन, and they expect that you should give these returns through database, through existing software, without the help of any conduit, without the help of any other software. ये अपेक्षा है रिजर्व बैंक की। ये अपेक्षा आप पूरी कैसे करोगे? इट्स अ डेटा क्लींजिंग। व्हाट इज डेटा क्लींजिंग? एग्जिस्टिंग डेटा जो है, एग्जिस्टिंग डेटा का मतलब आप मान के चलो कि आपके पास एक ही अकाउंट है, एक ही सेविंग का अकाउंट है। वो सेविंग अकाउंट का पूरा ब्यौरा एक्यूरेटली डेटाबेस में लाना। आपके पास एक ही लोन अकाउंट है, वो आप लोन अकाउंट का जो डेटा आपके सिस्टम में होगा वो इतना एक्यूरेट लाना चाहिए कि उसका प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है, उसका कोडिंग क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके सिक्योरिटीज क्या है, ये डेटा एक्यूरेटली चेक करके फीड करना, देन गो फॉर माइग्रेशन। ये मैं एक अकाउंट को बोल रहा हूँ। आपके पास 10,000 अकाउंट होगी तो आपको 10,000 अकाउंट का डेटा क्लींसिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। और डेटा क्लींसिंग इज एन एक्टिविटी not only to be undertaken for the purpose of software change but otherwise also। आप भले नया सॉफ्टवेयर नहीं ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा क्लींजिंग करो। क्योंकि अगर डेटा क्लींजिंग नहीं करोगी तो एमआईएस जनरेशन जो आपका होगा वो इनएक्यूरेट, इनकंसिस्टेंट होगा। रिजर्व बैंक 100 तरह की रिपोर्ट मांगती है तो 100 तरह की रिपोर्ट देने की हैसियत आपके सीबीएस में होना ज़रूरी है। वो अगर नहीं है तो ये इतना सब करने के बावजूद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी बैंक की बढ़ोतरी के लिए होगा नहीं। तो दीज आर द की थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। माइग्रेशन करना चाहते हो, नए सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइमलाइन फ्रेम करो बस। फैक्टर कमर्शियल इनटू टाइमलाइन कि भाई हमें सॉफ्टवेयर 6 महीने में करके चाहिए, 6 महीने के ऊपर एक दिन हो गया 10,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा। टाइमलाइन क्या होगा इससे? सॉफ्टवेयर वेंडर जो होगा ना वो डेडिकेटेड रिसोर्स एलोकेट करेगा, और वो डेडिकेटेड रिसोर्स एलोकेट करेगा तो टाइमलाइन थोड़ी आगे पीछे तो होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आगे पीछे हो रही है तो आपको
विजुअलाइज आप कर सकते हो कि ये दिन मेरा प्रोजेक्ट होना पूरा बाकी है। मैंने ऐसी कई बैंक्स देखी हैं कि बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर लेने के बावजूद भी 2-2 साल कर रहे काम। वो 2-2 साल क्यों कर रहे हैं? मेरा एक मानना है जेनरिकली, हर एक बैंक में जो आईटी के बंदे होते हैं ना, वो अपने आप को तीर मार का, तोपखाना मार्क समझते हैं। बैंकिंग कुछ समझता नहीं है, लेकिन उनको मालूम होता है कि उनके बगैर तुम्हारी बैंक चलने वाली नहीं है, और वो अपना सिग्निफिकेंस जो है ना वो बचा के रखते हैं। वो अगर सिग्निफिकेंस बचा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें डिले किस तरह से आएगा, टेक्निकल सवाल खड़े करते हैं। ओवर रूल करो, हिम्मत रखो ओवर रूल करने की। सो इट्स अ टीम गेम। माइग्रेशन इज ऑलवेज अ टीम गेम। अगर आपकी आईटी की टीम आपके साथ नहीं है, बहुत परेशानी आएगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। कुछ समझाना बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी को डर ये लगता है कि नया टेक्नोलॉजी आने के बाद मेरी नौकरी जाएगी। नो, यू हैव टू कन्विंस द आइडिया इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि ये जो माइग्रेशन का एक्सरसाइज होता है ना, सबके लिए लर्निंग प्रोसेस होता है, वेंडर के लिए भी, तुम्हारे खुद के बंदों के लिए और वेंडर के लिए। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। व्हाट यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव नॉट सीन। मैंने देखा है कि एक बैंक में ऐसा ही सॉफ्टवेयर माइग्रेशन हो रहा था, और उसमें 10-15 गुना, उनके बैलेंस शीट के 10-15 गुना ऐसी डमी एंट्री जनरेट हो गई थी। यानी 500 करोड़ की डिपॉजिट और 25 करोड़ की ऐसी डमी एंट्रीज कैश में आ गई थी। CACH कैश। डिलीट करने की सिवा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन चेयरमैन डर गया, ये 2500 करोड़ का डिलीट कर रहे, क्या पंगा कर रहे, मुझे कुछ पता नहीं है क्या होगा। अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, ये एंट्रीज किस वजह से आई हैं। और ये होने के बाद में आप ऐसे सॉफ्टवेयर वेंडर को सिलेक्ट करो जिसके पास बेंच स्ट्रेंथ है। मतलब ये है कि आईटी कंपनीज में बहुत सारे एट्रिशन होती रहती है। आज सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक बंदा आएगा, इम्प्लीमेंटेशन को दूसरा आएगा, और 2 महीने के बाद और कोई तीसरा ही बंदा होगा। Take a commitment from the software company that they have a deep bench strength to ensure that the product walkthrough and the implementation walkthrough is done thoroughly and professionally. Decide the objective why you want to do this. You want to do this to protect the interest of the bank. You want to do this to eliminate the regulatory risk. You want to do this to offer fantastic product to your customers. You want to do this to ensure that all the commercial products which are available in the banking market are on your shop floor as well. आपके स्टोर में वो सभी प्रोडक्ट्स है जो बाजू की बैंक दे रही है। Now if that is the object, कितना पैसा खर्चा करोगे? बेंचमार्क नहीं है, अपने हैसियत के हिसाब से करो, अपने हैसियत के हिसाब से करो। नॉर्मली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का जो प्राइसिंग आता है वो आप 1/3 राइट ऑफ कर सकते हो। तो अगर 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर लेते हो तो इमीडिएट P&L को हिट कितनी आने वाली है? 60-70 लाख की आने वाली है। वो अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो, गो फॉर दिस। I wanted to talk about this particular area because I find many urban cooperative banks are struggling with their software and they are not mustering up courage to change it. Put up the courage to change it. क्योंकि आपको आगे 100 साल जीना है। जो 2011-12 में आपने CBS लिया वो आउटडेटेड हो गया है। वो पुरानी लैंग्वेज में था, जावा में था, इसमें था, कोबोल में था, फॉक्सट्रो में था। गए यार वो सब्जेक्ट, वो लैंग्वेजेस ही गए। तो जो नया CBS लोगे वो फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज वाला होना चाहिए, भले ओपन सोर्स वाला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो। और मुझे ये लगता है कि अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको टेक सेवी रहना है, अगर आपके कस्टमर्स कहीं और नहीं जावे, ये अगर आपको करना है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी इज अ की थिंग। इसलिए मैंने बिना किसी कंपनी का नाम लिए आपको क्या करना चाहिए उसकी हिंट्स दी है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। ये सब्जेक्ट पूरे दिन भर बात करने का है, लेकिन अगर इस सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई चिंता है, आपको कोई सवाल है, आपको कोई डिफ़िकल्टी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर संडे आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ जिसके ऊपर आप सोचें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइकिंग देम,
Please do subscribe. Please ask all your cooperative banking friends to subscribe to the channel so that they will get the first bell to know when the new video is uploaded. Thank you so much for watching. Thank you.